Hello, Assalamu alaikum everyone. This is Hashim Barrak. I welcome you all to the third special interest group session on artificial intelligence. I'll be your host for the day. I see that we have quite a few number of new faces today. You're all very welcome to this session. Uh, this is third in the series of 6 sessions on artificial intelligence. We previously had 2 sessions. Um, these sessions happen on each Thursday in the afternoons. We'll begin with this session formally now. So, a couple of housekeeping rules before we kick off the agenda. We have a general discussion session at the end of the talk from Dr. Shehzad Cheema. So, if you have any questions or queries, Dr. Shehzad would be available in that session. Also, these 6 sessions, these are a general forum and discussion sessions. So we would like to hear as much as possible from all of the audience that we have. So feel free to share your comments and suggestions. Also, for those of us who are joining or who have been part of these sessions previously, you will find some repetitions, but it is important that we take all of the people along with us. So you will be seeing some of the things that we mention always in these 6 sessions. Uh, in the previous sessions, we had Dr. Nabil from Foundation University. We had Dr. Shehzad from Islamic University Bahawalpur. They did some excellent talks on AI in healthcare, biomedical devices, specifically regarding open data models, how you can prepare the healthcare data and make it usable for data analysis. We also had Sadia Ashraf from SPS previously share. She's a former professor at NUST, and she spoke about some of the products that she has built using AI tools. With this third session, um, the whole idea, as I mentioned with Dr. Nabil, Dr. Shehzad, Sadia, is to provide a platform which helps us as a commercial enterprise and you as faculty and students. We do have audience from industry as well, but most of these sessions are geared towards academia. So these sessions give us an opportunity जहाँ पे आप और हम मिलके इन ideas को share करें and we find those collaboration opportunities. In every session, someone speaks, and a lot of people benefit from those talks. Uh, Further, these sessions expose us to what's happening latest in the world. एक तो ये ना कि आप ऑनलाइन जाके कोई आर्टिकल पढ़ लें, बट इट्स अ होल डिफरेंट थिंग जब आप किसी से इन पर्सन सुनते हैं और उन्होंने कोई प्रोडक्ट या कोई इनिशिएटिव या कोई टेक्नोलॉजी या सम अदर इंटरेस्टिंग आइडिया जब वो शेयर करते हैं. So it has a different learning experience. So that was the whole objective behind establishing these special interest group sessions. End goal is that through these sessions we find those opportunities जो कि learning की opportunities हों, which lead to some concrete skills. And for example, in AI, you can find, you can learn some hardcore solid skills, which will eventually lead you to generate more money for yourself. And the idea is that if we have that critical mass जो कि हमारे पास अगर available हो, तो we can even bring this nation of Pakistan on the global map as a country that is known for artificial intelligence skills. And with this objective, we keep on to strive for these sessions, and we have a lot of other things in the pipeline, which we will inshallah be sharing. With this, I'll move to the agenda. Uh, we have so I'll be joined. I'm joined here by Dr. Arshad Ali. Dr. Arshad Ali is the former executive director of Higher Education Commission and currently the president of Spin Labs. Spin Labs is the Software Productivity Innovation Labs. SPS is the parent company based out of Rockville, Maryland, just outside of DC, and Spin Labs sort of is the speedboat right beside SPS that does all the innovation stuff. So Dr. Arshad heads that innovation lab. He'll be opening this session with his remarks at academic outreach program. After this, we'll have our core presenter, which is Dr. Shehzad Mumtaz. He is the former actually, he just left IBM. He was there as lead data scientist for IBM Watson Germany, and he's also running some of his initiatives in data science in Pakistan.
He'll be sharing with you about practical AI and opportunities for academia in Pakistan. After that, we'll have a general discussion, which, as I mentioned, you can use to ask any questions. With this, I'll hand it over to Dr. Arshad Ali. Sir, if you can share your screen, please. Bismillahirrahmanirrahim. Today I will not have any screen. First of all, welcome especially Shahzad Chima. I had earlier met him and later on he passed on his own greener pastures और उसके बाद फिर कभी मुलाकात नहीं हुई है. But this forum was a very nice opportunity to reconnect ourselves. और इनको फिर हमने रिक्वेस्ट की कि जो कुछ आपने जिंदगी में सोचा है उससे what kind of learning has evolved which can help other young professionals to benefit from. एक चीज़ जो मैं हर सेशन में कहता हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ कोई 30,000 के करीब कंप्यूटर साइंस रिलेटेड लोग ग्रेजुएट होते हैं, जिनमें से मैक्सिमम कोई इंडस्ट्री तो कहती है 3,000, लेकिन मैं कहता हूँ 5,000 ऐसे होते हैं जो आगे पीछे कहीं फिट हो जाते हैं. रिमेनिंग 25,000 जो है जॉब ढूंढ रहे होते हैं, जबकि टोटल यूनिवर्सिटी सिस्टम से जो लोग हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं वो 7,60,000 है. और अभी टेक्नोलॉजी हैज़ क्रिएटेड सो मच अपॉर्चुनिटीज़ कि अगर आपने फारसी में भी अपनी डिग्री की है या हिस्ट्री में की है, स्टिल यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू कनेक्ट टू आईटी. और सिर्फ ये है कि यू शैल हैव द एबिलिटी टू आस्क राइट क्वेश्चंस. सो एक तो मेरी सजेशन होगी स्टूडेंट्स के लिए, और वो ये है कि ज़िंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट लाइंग एनीवेयर ऑन द रोड कि कोई आपको बता देगा और आप उसे उठा लोगे. अपॉर्चुनिटी हमेशा मेहनत करने से आती है, और वो मेहनत करने के लिए यू ऑलवेज नीड टू हैव सम गाइड और एडवाइस और एडवाइज़र जो कि आपको चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट कर सके, और वहाँ से फिर आपका अपना पैशन होगा, अपनी मेहनत होगी, अपना जज्बा होगा जिसके तहत फिर आप उस चीज़ को कैश ऑन करोगे. तो हम ये जो प्लेटफॉर्म है ये इसी तरह की एडवाइजरी रोल के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मेरी 40-45 साल की उम्र इसमें गुजरी है. और हम ये चाहते हैं कि अगर हमारा जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उससे लोग बेनिफिट कर सकेंगे, देयर कुड बी नो बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर दैट. और इसमें देयर इज नो कॉस्ट अटैच्ड टू इट. वी will help you access all the course material as well as advisory for certifications etc. free of cost, ताकि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे. और जब आप कामयाब हो जाएं तो देन अगर हमारे पास प्रोजेक्ट होंगे, यू कैन, इफ यू वांट टू वर्क विद अस यू कैन डू दैट. अगर आप दुनिया बेशुमार है, if you want to find opportunities around the globe, then that is your choice. So that is for this group. दूसरी मेरी सजेशन होगी कि फैकल्टी मेंबर्स को 4 साल में इतने लोग कोर्सेज पढ़े होते हैं, और उसके बाद भी अगर वो कहीं जाते हैं और वो कहते हैं जी इसको तो कुछ भी नहीं आता, मेरा ख्याल है इससे बड़ी बदकिस्मती और कोई नहीं हो सकती. सो और मैंने जो नस्ट में एक काम शुरू किया था, मैंने ये किया था कि कोर्सेज के साथ जैसे अगर डेटाबेसेस पढ़ा रहे हैं तो देन देयर आर लॉट ऑफ सर्टिफिकेशन जो कि डेटाबेस रिलेटेड स्टैंडर्ड या रिनाउंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर जैसे IBM हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन लोगों की सर्टिफिकेशन अवेलेबल है. तो अगर उस कोर्स के दौरान हर बच्चा 2-2, 3-3 सर्टिफिकेशन कर ले, और टोटल कोई 70 के करीब कोर्सेज होते हैं. काइंडली ये मोबाइल का अगर रिंगर ऑफ कर दें तो 70 के करीब कोर्सेज होते हैं, तो 140 सर्टिफिकेशंस बंदा कर सकता है. 140 ना हो तो मैं तो कहता हूँ अगर वो 10-15 भी कर ले, 2 भी कर ले, 3 भी कर ले, इट विल डिस्टिंग्विश दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू द अदर इंडिविजुअल. सो दैट इज फॉर द फैकल्टी मेंबर के अपना जो वो कोर्स पढ़ा रहे हैं, वी विल हेल्प यू प्रोवाइड all those guidelines, exposure as well as access to the material. और अभी जो
एक्सेसिबिलिटी है ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन से लिमिट होती है, अदरवाइज देयर इज नो डेप्थ ऑफ मटेरियल व्हिच इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। और जो स्पिन लैब का प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू हम आपको हर जो टेक्नोलॉजी वेंडर है उसका यूनिवर्सिटी एकेडमिक प्रोग्राम है या वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, सो उसके थ्रू वी विल प्रोवाइड यू ऑल एक्सेस एज वेल एज एडवाइजरी। टुडे Hashim will also share some of the those courses which are available, वो कहाँ पड़े हुए हैं, उनको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उनसे आप बेनिफिट कैसे कर सकते हैं। सो और डॉक्टर चीमा will also guide you in that particular direction। बड़ी अफसोस होता है जब हम देखते हैं कि वो जो प्रोजेक्ट हैं फाइनल ईयर के, उनका नाम तो ऐसे होता है जैसे कोई मार्स का रोवर डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो चंद लाइन का एक कोड होता है जिसको लिख के वो छोटी सी फंक्शनैलिटी डेमोस्ट्रेट करके हम वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मुकम्मल कर रहे होते हैं। ना वो स्टूडेंट के लिए बेनिफिट होता है, ना वो सोसाइटी के लिए बेनिफिट होता है, ना ही वो किसी इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल होता है। सो वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू बिल्ड अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट प्रोग्राम जिसमें हम कंप्लीट एडवाइजरी प्रोवाइड करेंगे कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इंडस्ट्री की इंटरेस्ट के किस तरीके से हो सकते हैं। So that is another aspect which we will help you with। दूसरा जो है वो ये है कि जो मैंने आपको बताया कि अगर किसी ने हिस्ट्री में पीएचडी मास्टर किया है या बैचलर किया है या इस्लामियात में किया है, अगर इंसान में थोड़ी सी समझ बूझ है और वो कंप्यूटर को यूज करना जानता है, यू कैन बिल्ड ऑन टू दैट। और अभी आप ये देखें कि IBM ने एक कॉलेजेस के साथ मिलके 9th और 10th के बच्चों को IT सिखाने का प्रोग्राम शुरू किया है, जिसकी बेसिस पे दे डायरेक्टली इंडक्ट दोज पीपल इनटू IBM एम्प्लॉई एज पार्ट ऑफ इट। सो आप अंदाजा लगाएंगे अगर 9वीं 10वीं का बच्चा जिसका बैकग्राउंड IT का कोई खास नहीं होता है वो IBM का एम्प्लॉई बन सकता है, तो आपने अगर 14, 15, 16 साल की डिग्री की है तो व्हाई कांट यू बी द थिंग। द ओनली थिंग इज आप में वो हिम्मत होनी चाहिए कि आप चीज़ों को थोड़ा सा मेहनत करके एनालाइज करें, उनको समझने की कोशिश करें और फिर जो समझ आया उस नॉलेज की एप्लीकेशन वो देखें। सो तो और अभी वक्त के साथ साथ हर जो टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म है वो इतना सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है कि यू विल ओनली नीड टू नो कि कौन से टूल्स कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, आपने सिर्फ उनको जोड़ना है एंड यू विल हैव द सॉल्यूशन रेडी। अभी जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देयर इज अ पर्टिकुलर डोमेन व्हिच इज एमर्जिंग व्हिच इज कॉल्ड एनालिटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। सो उसमें अगर आप एनालिटिक्स रन करना चाहते हैं तो यू हैव टूल्स अवेलेबल जो कि आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में और उनके पर्टिकुलर फॉर्मेट बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। फिर उसका देन देयर आर टूल्स अवेलेबल जो उसका मॉडल डेवलप करने में हेल्प करेंगे एंड देन देयर आर टूल्स अवेलेबल जो कि उस पे फिर एनालिटिक्स रन करेंगे। सो यू नीड नॉट टू बी नोइंग कोडिंग, आपकी चाहे जीरो हो या मिनिमल हो। सो अब वो ड्रैग एंड ड्रॉप कॉन्सेप्ट के साथ और थोड़ी सी समझ के साथ यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स। यू कैन बी एम्प्लॉय ऑफ IBM, यू कैन बी एम्प्लॉय ऑफ माइक्रोसॉफ्ट और एनी अदर टेक्नोलॉजी वेंडर एंड वी विल ट्राई टू प्रोवाइड। हमने ये अपने दोस्तों के साथ अहद किया कि हम ये कोशिश करेंगे कि हम ये सारी जो खूबसूरत सी बास्केट है जिसमें हर तरह के जो कोर्सेज अवेलेबल है, वी विल एक्सपोज दैट बास्केट टू यू। अब वो आपकी इंटरेस्ट पे, चॉइस पे और आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैश ऑन कैसे करना चाहते हो। सो दैट इज द एडवाइस व्हिच आई कैन गिव बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। सो विद दैट आई विश यू गुड लक और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे और इस मुल्क के लिए और अपने फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए यू आर
beneficial. Thank you very much. Dr. Shehzad Chima, sir, you can go ahead and share your screen. Thank you very much. Assalamu alaikum. First of all, thank you very much, Dr. Rashid Ali Hashim, for reaching out to me. और मुझे इनवाइट करने के लिए, बल्कि मेरी जब लास्ट टाइम डॉक्टर रशीद साहब से भी बात हुई तो आई रियली एंजॉयड जो उनका कॉन्सेप्ट है स्पिन लैब का और जो ट्रेनिंग्स हैं, और मैं उनसे बल्कि यही कह रहा था कि दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई हैड बीन टॉकिंग अबाउट, व्हाट आई वाज रियली विशिंग कि जो एकेडेमिया है वहाँ पे जो कम अज़ कम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी साइड है उसको भी उसको एक्सपोज होना चाहिए। और टिपिकली इट वाज अ चिकन एग प्रॉब्लम कि एकेडेमिया कह रही है जी इंडस्ट्री हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करती, इंडस्ट्री कहती है वो नहीं करते, बट इफ वन ऑफ दोज बिकम्स अ चिकन and then they start taking initiative, I think that's really appreciating. So really happy to be here. So जब मैं स्लाइड्स को पुट कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था, तो आई थॉट अबाउट डिफरेंट थिंग्स के भाई प्रैक्टिकल एआई, कुछ अपनी एग्जांपल्स कुछ जो हैं वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करूँगा। उसके बाद कुछ हम लोगों ने भी इसी तरह का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, डेटा साइंस इनिशिएटिव पाकिस्तान, उसकी मैं एक कुछ अपनी अचीवमेंट्स बता दूंगा। कोविड की वजह से फिर हम थोड़ा सा उसमें ज़्यादा काम नहीं कर पाए फर्दर। प्रैक्टिकल एआई एट एकेडेमिया, दिस इज द सेट ऑफ थॉट्स जो हमने कहा जो अपॉर्चुनिटीज है। इट कुड बी लाइक हाउ द थिंग्स आर एज इट इज, हाउ आई अंडरस्टैंड एंड हाउ they should be based on my experience and based on my thoughts. और उसके बाद मेरा हम ओपन डिस्कशन करेंगे। आई वाज गिवन समथिंग लाइक कि हम कुछ 25 मिनट तक जो है ना ये स्लाइड्स करें। मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा बना दिए हैं, सो आई वुड स्टिल ट्राई टू बी लेट्स से सम टाइम फास्ट और सम टाइम स्लो। सो I hope we will still have 20 minutes or so at the end to discuss. So just a little bit about myself. मैंने पाकिस्तान में 2000 में मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस में, स्टार्ट किया एक्चुअली मैथमेटिक्स में, और वहीं पे मैंने पैरेलली स्टार्ट कर दिया कंप्यूटर साइंस में भी, बिकॉज मुझे यही लगा कि यार ये हम सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे तो क्या होगा। एंड दैट इज़ वन थिंग दैट एक्चुअली केप्ट मी ड्राइविंग। 4 years तक मैं PUCIT में पाकिस्तान पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पे जॉब करता रहा। That's also why I am very much close to academia and I wish कि जी you know to contribute। मैं अभी भी कहता हूँ कि I am principally a teacher। उसके बाद जर्मनी में मैं आया स्कॉलरशिप पे, और यहाँ पे मैंने मास्टर किया ऑटोनोमस सिस्टम्स में, और उसके बाद फिर PhD की, सो रोबोटिक्स में, और उसके बाद मशीन लर्निंग में, कंप्यूटर विजन में और लार्ज स्केल मशीन लर्निंग में। उसके बाद 2014 में मैंने जॉब स्टार्ट की। आई वाज बैक इन पाकिस्तान फॉर सम टाइम, बट again not going to be complaining too much, but I had an opinion के जो काम हमने सीखा है it has to be practical, not only you know I was already working at academia and I was so happy. So when I started as a data scientist in 2014, travel audience, ये उन दिनों की बात है जब ये Go language, big data, you know, ad tech में अब ये देख लें कि कुछ 300 million events per day ये कंपनी डील कर रही थी। So I had really good exposure there. Startup कंपनी थी, you get a lot of chance to learn about technology and you have to be very fast. उसके बाद मैं DHL में आ गया। बोन में इनका हेडक्वार्टर है जर्मनी में, और वहाँ पे मैंने 2 साल जॉब की एज अ सीनियर एक्सपर्ट। तो DHL अब ये इस वक्त तकरीबन 70-80 बिलियन यूरो की कंपनी है। तो वहाँ पे उन्होंने सेंट्रल डेटा साइंस डिपार्टमेंट बनाया 2015 में। तो मैं उसका वन ऑफ द फर्स्ट मेंबर्स था, पहले थ्री मेंबर्स में। जब मैंने छोड़ा तो उस वक्त ऑलरेडी 30 मेंबर थे, एंड वी हैड ऑलरेडी डेवलप्ड 5 or 6 अदर डिविजनल डिपार्टमेंट्स। और ये जो हमने सेंट्रल डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट था, इट वाज रिपोर्टिंग टू द CEO, सो इट वाज अ CEO डिपार्टमेंट, सो वी वर रियली इन द हेडक्वार्टर एंड वी हैड रियली एक्सेस टू द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट एंड सो ऑन। एंड यू विल सी अ कपल ऑफ एग्जांपल्स जिसमें हम बताएंगे कि हमने उससे आखिर DHL ने अचीव क्या किया। उसके बाद 2017 में आई मूव टू म्यूनिख, जहाँ पे IBM ने न्यूली एस्टेब्लिश किया था अपना वाटसन IoT हेडक्वार्टर। दिस इज द ओनली हेडक्वार्टर IBM ऑफ एन IBM डिवीजन आउटसाइड US। और वहाँ पे फिर मैंने एज अ लीड डेटा साइंटिस्ट ज्वाइन किया। वहाँ पे फिर बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है एक इंडस्ट्री लैब का। तो इंडस्ट्री लैब इज समवेयर बिटवीन रिसर्च, एप्लीकेशन एंड क्लाइंट्स। So we did project for clients,
we did project with research, we built demos, we built something new and so on. So कुछ example मैं उसकी भी दूंगा. Similarly IBM में मेरे different role रहे. मैं academic ambassador भी रहा हूँ. Academic ambassador IBM में ये रोल है जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ लाइजन करता है. तो मैं पाकिस्तान के लिए था, इधर जर्मनी में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ मैं काम करता रहा हूँ. ये IBM के एम्प्लॉइज होते हैं. They can become a teacher, they can offer courses at universities. And similarly, they can bring students. Also, they can provide some grants and access. पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी में, बल्कि लाहौर में, fortunately I was able to do के I provided them 3,000 students access to the IBM cloud. बाकी जो cloud provider हैं, they also have very similar programs. उसके बाद मैं IBM ने बहुत recent trend start हुआ quantum का, तो मैं quantum ambassador भी बन गया. और quantum ambassador में आप quantum is a relatively new technology, so it's, I will say, pretty sacred topic right now, but I think it's just coming in time. अभी recently मैंने IBM को छोड़ के अभी मैं थोड़ा सा break पे हूँ, but I am joining Huawei next month. So again in Huawei, Germany, and there my role will be very similar as a lead AI expert in the area of automotive manufacturing energy. Some past projects. Just to set up the agenda what we are talking about. ये एक project है 2016 में हमने किया था DHL के लिए. So ये एक DHL का जो ग्लोबल शिपमेंट रूटिंग है, ये तकरीबन उस टाइम पे 10-11 बिलियन डॉलर का बिजनेस था. जो शिपमेंट्स हम भेजते हैं एक कंट्री से दूसरे किसी कंट्री तक, और ये तकरीबन एक दिन में कुछ 3 to 5 मिलियन शिपमेंट्स होती हैं. एक वीक में आपके पास 100,000 फ्लाइट्स अवेलेबल होती हैं, ट्रक्स होते हैं, स्टेशन होते हैं. सो यू हैव अ ह्यूज नेटवर्क. देयर इज ऑलरेडी अ वे थिंग्स वर वर्किंग, बट वी बिल्ड अ न्यू सिस्टम. I was the core developer and leading that in the project, and we had built a new solution that is saving, I would say, huge amount per year by using of course certain algorithm. बहुत sometime इसकी example इस project की इसलिए भी देता हूँ, अगर आप मुझसे पूछें कि इसमें हमने academic चीज़ कितनी की, machine learning कितनी लगाई, तो machine learning was let's say 5% of the problem. 95% we developed it from the data, from algorithms. So again, when I call about data scientists, AI people, I think they should be solutionists. So it's more a solution than, I will say, a machine learning magic, and it's saving, I will say, huge amount to the company since then. Then ये एक एग्जांपल है जो हमने ऑटोनोमस कार, शायद कुछ लोगों को पहले आइडिया भी हो, जो हमने एक प्रोजेक्ट किया 2019 में. सो ये हमने एक क्लाइंट के साथ, यहाँ पे आइडिया ये था कि हाउ कैन वी मेक कार लर्न. सो IBM इज नॉट टू मच लाइक बिल्डिंग ऑटोनोमस कार, बट IBM इज मोर इनटू प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी. सो इन दिस केस हम काम कर रहे थे उस कंपनी के साथ जो कार्स के अंदर स्टीयरिंग सिस्टम प्रोवाइड करती हैं. तो आइडिया ये था कि हाउ कैन वी मेक स्टीयरिंग सिस्टम बेटर बाय डिफरेंट एक्सपीरियंस. तो यहाँ पे आपने रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जैसे AI में रीइंफोर्समेंट लर्निंग आपने देखा होगा कि अब बहुत ज़्यादातर ये एकेडमिक्स में यूज़ हो रही है, यानी ये बहुत ज़्यादा गेम्स में यूज़ हो रही है, डिजिटल वर्ल्ड में यूज़ हो रही है. सो वी वर, आई वुड से, वन ऑफ द अर्ली प्रोजेक्ट्स जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग को किसी प्रैक्टिकल हार्डवेयर प्रॉब्लम में लेके आए. और ये फिर हमने इसको यहाँ पे इसको मुख्तलिफ ट्रैक्स पे चलाया, जिसमें हम ओवरऑल आइडिया ये है कि कार अपना कंट्रोल सिस्टम बेटर करती है, स्मूथिंग करती है, ऑप्टिमाइज करती है, स्पीड को इन्हांस करती है. फिर जो नीचे आप राइट साइड पे देख रहे हैं, हमने फिर इसी चीज़ को इसका एक डेमो बनाया, और यहाँ पे हमने एक कंपनी होती थी आन की, उसकी कार्स होती थी, ये ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड हो जाती हैं. और ये डेमो हमने इस तरह का बनाया हुआ है कि इसमें कार ने उसी तरह से लर्निंग की हुई है, 1000, 5000, 10,000 लैब्स वो करवा के, और उसके बाद वो इस ट्रैक पे चलती है. और हमारे पास सेंटर में जब कोई क्लाइंट्स आते थे जो टिपिकली चीफ एग्जीक्यूटिव या C लेवल के लोग होते थे, हम उनसे कहते थे चलें काम करते हैं, आप इस कार को बीट करके दिखाएं. सो वी अलाउड पीपल टू विन. तो हम उनसे कहते हैं आप इसको चलाएं, और फिर हमारा जो मशीन लर्निंग का हमने डिफरेंट लेवल पे उसको स्टोर किया होता था, उसकी लाइफ साइकिल, 10 साइकिल के बाद ये कैसे करेगा, 1000 के बाद ये कैसे करेगा. सो इन दिस वे पीपल रियली गॉट एक्साइटेड, एंड एट द सेम टाइम वी शोड देम हाउ आवर रियल प्रोजेक्ट इज वर्किंग. इसकी भी कोई YouTube पे आपको अवेलेबल होंगी वीडियोस भी. ये अब मैं अगर थोड़ी सी आपको ये बात बताऊँ, थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड, ये नीचे राइट साइड वाली पिक्चर पुट करने का, तो ये मैंने स्टूडेंट्स से बनवाया था. तो मैं प्रोजेक्ट कर रहा था, मेन जो था वो ऑटोनोमस कार पर, हम चाहते थे कि इसको शो केस करें. सो ये हमारे स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने बैचलर के स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने ये सारा हमारा सेटअप बना दिया था, इम्प्लीमेंट कर दिया था क्यू लर्निंग. लेटर ऑन हमने इसमें कैमरा वगैरह भी इंस्टॉल कर दिया था, टॉप व्यू.
and it is still there as one of the great diamonds. उसके अलावा हमने काफ़ी ज़्यादा काम करते रहे कंप्यूटर विजन में। अब कंप्यूटर विजन में भी एक आप देखते हैं चीज़ टिपिकली जो कॉमन केसेस है ना, जो लेफ्ट साइड पे आप देखते हैं, जो केसेस हम देखते हैं सोशल मीडिया के केसेस हैं, सिक्योरिटी के केसेस हैं, फेस रिकग्निशन एंड सो ऑब्जेक्ट रिकग्निशन। लेकिन जो आप मिडल में देखते हैं, दिस इज वेयर अभी इंडस्ट्री मूव कर रही है, वो है इंडस्ट्रियल कंप्यूटर विजन। इंडस्ट्रियल कंप्यूटर विजन में क्वालिटी इंस्पेक्शन एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, जियो स्पेशल एनालिसिस एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, सर्वेलेंस एक मेजर एरिया है। यहाँ पे सिर्फ क्वालिटी इंस्पेक्शन के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाई हैं, वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैंने काम किया हुआ है। और उसमें से टिपिकल प्रॉब्लम ये क्या है, फॉर एग्जांपल कि जी जो हम पीसीबी असेंबली है उसमें कोई फिंगर जो है ना, उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, गोल्ड फिंगर प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई पेंट सही नहीं हुआ, और ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर एक कॉस्ट बहुत कम होती है अगर आप ऑटोमेटेड सिस्टम बना दें। जो पुराने सिस्टम थे वो इतने अच्छे काम नहीं करते थे, तो यहाँ पे हम बहुत एक्सटेंसिवली डीप लर्निंग वगैरह यूज़ करते हैं। राइट साइड पे आप देखते हैं, दिस इज समथिंग न्यू, मे बी ये माइक्रोसॉफ्ट का भी हमने एक प्रोजेक्ट किया है एक क्लाइंट के साथ, सीमेंस के साथ, जो एनर्जी ब्लेड बनाते हैं। सो इट्स 100 मीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, तो टोटल एरिया जिसका 1000 स्क्वायर मीटर से भी ज़्यादा है, एंड वी इम्प्लीमेंटेड इट विद टेंस ऑफ कैमरास प्रोडक्शन सिस्टम पे। और उसमें यूँ कह लें कि हम पिक्सल लेवल पे, मिलीमीटर लेवल पे एनालिसिस कर रहे हैं। इसके ऊपर पूरा एक प्रोजेक्ट हमने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे किया था, क्योंकि जो क्लाइंट है वो माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहा है। और IBM में भी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ IBM ही यूज़ करते हैं, वी आर इन सर्विसेज, सो वी वर यूजिंग व्हाटएवर इज सुटेबल टू क्लाइंट। और ये इसमें हमें अभी बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल अब क्लाइंट जब खुद शेयर करेंगे तो यू विल सी दैट इट हैज़ वन दिस माइक्रोसॉफ्ट इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग अवार्ड जस्ट रिसेंटली, जिसमें हम एक प्रोडक्ट जो बिल्ड हो रही है मल्टीपल डेज में, उसमें कह लें एक मिलीमीटर लेवल पे उसकी प्रिसीशन जो डिज़ाइन डेटा था उसके साथ चेक कर रहे हैं एक बहुत ह्यूज एरिया में। So that's let's say some of the past projects. मेरा जो रोल एक IBM में भी रहा है वो एकेडमिक एम्बेसडर का रहा है। तो एक अगर आप ये ऊपर देखें तो ibm.com/academic, यू शुड ट्राई दैट। या वैसे आप देख लें IBM एकेडमिक इनिशिएटिव, IBM यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। पाकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑलरेडी इसकी मेंबर्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नहीं हैं। यू कैन चेक योर यूनिवर्सिटी एंड यू कैन देन ट्राई। जब आप इसमें आते हैं तो इससे आपको बहुत सारे जो है ना वो एडवांटेज हो जाते हैं। आपको क्लाउड की फ्री एक्सेस मिल जाती है, जो फ्री टीयर से थोड़ी बेहतर होती है, कोर्सेज है इसमें अवेलेबल। और इसकी तरह से अगर कोई आपकी यूनिवर्सिटी में कोई एकेडमिक एम्बेसडर है तो दे कैन आल्सो कनेक्ट यू विद इवन प्रोजेक्ट्स एंड रिसोर्सेज। आपको एक्सेस मिल जाती है, कुछ चीज़ों की अर्ली एक्सेस मिल जाती है, IBM के अपने सॉफ्टवेयर की आपको एक्सेस मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जस्ट एक क्लाउड की एग्जांपल है कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, मेरी फीलिंग ये है कि वो कोई बहुत ज़्यादा अभी लोग ना सिखा तो देते हैं कि व्हाट इज़ लेट्स से विजुअल रिकग्निशन, बट हाउ अ सर्विस शुड बी यूज्ड इज़ नॉट देयर। जब डॉक्टर अर्शी साहब ने बताया कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज़ नीडेड। देयर आर मैनी थिंग्स। सॉफ्टवेयर में जब आपको बहुत बड़ी सोल्यूशन बनाएंगे, इट विल बी कम्प्लेक्स, यस, you might have to do a lot of customization, but there are so many solutions जो आप इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप से, हाई लेवल टूलिंग से कर लेंगे। और अगर आप नहीं भी करते तो व्हाट यू अंडरस्टैंड इस तरह के प्लेटफॉर्म को यूज़ करने से द आर्किटेक्चर ऑफ द सोल्यूशन, कि अच्छा मुझे वाटसन असिस्टेंट भी यूज़ करना है, मुझे उसका स्टूडियो भी यूज़ करना है, मुझे पाइथन के प्रोग्राम बनाने हैं। सो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे नहीं दी, जो हमने स्मार्ट होम की प्रोजेक्ट किया, तो उसमें से जो पूरा आर्किटेक्चर था वो हमने सी से बना लिया था, उसके बाद जो कस्टमाइजेशन थी वो हम करते रहते। So if you go more towards cloud and the service providers, I think there is a huge opportunity. I know इसी तरह से AWS की हैं, certifications भी available हैं, cloud access भी available है, but that's really essential in my opinion. डेटा साइंस इनिशिएटिव, मैं ज़रा इसको क्विकली आपको छोटा सा बताता हूँ कि हमने 2017-18 में यही फीलिंग थी कि भाई जो इस वक्त हमारी जो डेटा साइंस है या AI है यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो शायद अभी इस स्टेज पे नहीं पहुंची। तो हम लोगों ने, कुछ दोस्तों ने मिलके एक डेटा साइंस इनिशिएटिव के नाम से एक प्लेटफॉर्म सा बना लिया, जिसके साथ हम फिर वर्कशॉप्स करते थे। ये 5 डेज वर्कशॉप्स होती थी जो हम ऑन साइट करते थे। और उसमें फिर अब वो पॉसिबल नहीं रही कोविड की वजह से। बाद में हमने ये किया कि हमने इनको इंडस्ट्री के लिए भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो अभी इंडस्ट्री में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, दे आर रियली द पोटेंशियल कैंडिडेट्स टू बी द बेस्ट डेटा साइंटिस्ट, बिकॉज दे कैन बी फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट। तो हमने लाहौर में एक सॉफ्टवेयर हाउस है टेक्सल,
वहाँ पे हमने ट्रेनिंग की, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की, एक टीम बिल्डअप की, और उस टीम ने फिर बाद में काफ़ी सारी उनकी अचीवमेंट्स भी हैं. And they are of course other courses. So I think this is we are very happy. Unfortunately, we are not making too much progress these days, but it's good to say that it's already, you know, in fourth year. तो अभी मैं कुछ जो नेक्स्ट 10 मिनट्स हैं इसमें मैं कुछ एजेंडा सा कह लें, एक लेआउट कर लेता हूँ जिस पे हम वापस आ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं. दिस इज व्हाट आई थिंक shall be is needed to get the AI more practical, you know, in Pakistan. Of course, primarily related to academia, but it also has other players. And in my opinion, the players are, of course, faculty and students and, you know, people, the software industry, the other industry, the training programs, the content that we are training, the higher education institutes and the HEC. And I still think there is still something missing, and that I will discuss at the end. So फैकल्टी, आई थिंक मेरी फीलिंग ये है कि फैकल्टी में हम लोगों को जो कैरियर ग्रोथ है, जो पाथ है, उसमें सारे फैकल्टी ही के तौर पर ट्रीट हो रहे हैं, जबकि हमें एनालिसिस करके ये देखना चाहिए कि हम विच पर्सोना डू वी बिलोंग. आर वी रिसर्चर, आर वी टीचर, आर वी प्रैक्टिशनर? और अगर हम रिसर्चर हैं तो आर वी पब्लिशिंग इन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, आर वी आर पब्लिशिंग इन थर्ड ईयर, आर मल्टी, you know, topic. That's maybe it's okay for students to publish in multi, you know, topic or third tier, but I think it's not good that if researcher पाकिस्तान में मैं अपने फील्ड में जो कि कंप्यूटर विजन और एआई थी, I can just count people on single hand जिनके पेपर फर्स्ट ईयर में पब्लिश होते हैं. आईसीसी भी है, ECC भी है. जब मैंने पीएचडी स्टार्ट की तो मेरे प्रोफेसर ने वो सर्कल बना दिया था, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, और उसके बाद उसने बोला था बाकी रेस्ट है, इसमें कुछ भी नहीं आपने करना. आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली आल्सो व्हाट वी नीड टू डू. सिमिलरली रिसर्चर्स शुड हैव मोर लॉन्ग टर्म एजेंडा and they should be able to invest the efforts. एक चीज़ मैं कॉन्फ्रेंस वगैरह के पेपर समटाइम वैल्यूएट करता रहता हूँ. मैं टिपिकली ये देखता हूँ कि most people they just want to write paper based on some data available somewhere, right? कोई ऐसा प्लान नहीं है कि हम खुद से कोई काम करें, खुद से डेटा इनिशिएट करें, कोई 3 साल का 5 साल का प्रोजेक्ट इनिशिएट कर दें जिसमें हम डेटा कलेक्ट भी कर रहे हैं. मैं खुद यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैं आपको करता रहा हूँ, मैं खुद अपनी गाड़ी लेके, मैं एक दफ़ा ट्रैफिक एनालिसिस का प्रोजेक्ट कर रहा था. सो आई हैड अ फ्रेंड एंड आई जस्ट ड्राइव फॉर 8 hours in Bavaria just to take pictures of the traffic signs, because that's exactly the way you need to be solutionist, right? You need to create data if it's not there and if it does not relate to your problem. रिसर्च में कहा जाता है कि हम बहुत सारे पेपर पब्लिश कर लेंगे, बहुत सारे. आई थिंक इट्स नॉट अ मेजर ये है कि एट द एंड ऑफ द डे उससे फाइनेंशियल आउटकम क्या आई है. और अगर वो नहीं आ रही, अगर इवन पेटेंट भी आप आ रहे हैं और वो पेटेंट से भी आप कुछ नहीं कमा रहे. मैं IBM के आपको एग्जांपल देता हूँ. IBM हर साल आपको पता है पिछले 20 साल से IBM जो है वो टॉप पे पेटेंट्स में. IBM इन्वेस्ट अ लॉट इन रिसर्च डिवीजन है, लेकिन IBM is also earning a lot from those patents. So it's several $billion. I'm not sure if it's a public number, but I can just tell you that it's several $billion जो हम सिर्फ रिसर्च से ही लेते हैं अपने रेवेन्यू में से. So we need to see कि अच्छा अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो what is impact, let's say 10 years from now. Yeah. दूसरा रोल मेरे ख्याल में टीचर्स का है. टीचर्स ये है कि वो लोग जो मेरे ख्याल में रिसर्च नहीं करना चाहते, वो इतने पेडागोज, लेकिन वो दे एंजॉय प्रेजेंटिंग, दे शुड गेट सम सॉर्ट ऑफ वे फॉरवर्ड कि जी ठीक है, आप पेपर ना लिखें, आप कोई और काम ना करें, आप अच्छे तरीके से पढ़ाते ही रहें और हम आपको इंक्रीज कर देंगे, आप AP से एसोसिएट बन जाएंगे एंड सो ऑन. बट व्हाट इज, आई थिंक जो एक रोल है, और ये पर्सोना कम्बिनेशन भी हो सकते हैं, वो है प्रैक्टिशनर का. प्रैक्टिशनर है जो मे बी रिसर्चर नहीं है, बिकॉज रिसर्च इज समथिंग रियली एलीट. आई माई सेल्फ डोंट कंसिडर माई सेल्फ अ रिसर्चर, इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब. लेकिन प्रैक्टिशनर जो है वो ईजी है relatively. They should be able to work closely with industry. This is what I believe I am if I was at a university or if I am at an industry. And then we are aware with the tools and technologies and techniques. And we have certain business acumen. We want to get things done to achieve something right away as soon as possible. उसके बाद कुछ मेरे जर्नल मैंने इसमें अपनी सजेशंस भी आउटलाइन कर दिए हैं. टाइम की वजह से अगर मैं सिर्फ जो हाईलाइट कहूँ वो यही है कि भाई स्टे अवे फ्रॉम नॉन प्रोडक्टिव एंगेजमेंट. मैं यूनिवर्सिटीज़ में बात करता हूँ, मुझे पता चलता है कि वो कोलीग जो हैं वो सिक्योरिटी के भी इंचार्ज हैं, स्टेशनरी के भी इंचार्ज हैं, लाइब्रेरी का ऑडिट कर रहे हैं. सो आई थिंक दैट्स
highly misutilization of the PhD resource. If I'm a manager of a PhD person, I would really make sure कि भाई उसका टाइम सिर्फ सही जगह पे यूज हो रहा है. एक और चीज़ जो हो सकती है एकेडेमिया के लिए वो है पेयर अप करना इंडस्ट्री के साथ. हम जब PhD कर लेते हैं वी टिपिकली थिंक दैट वी आर वेरी स्मार्ट, विच वी आर ऑफ कोर्स, बट I think you should find out someone to shadow in industry and bring that person to your classroom or your lab or get their knowledge transfer to the student. इस तरह से स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिट होगा, आपके लिए भी बेनिफिट होगा. Thirdly, it's about branding. ब्रांड आप ज़ाहिर है कुछ डिलीवर करेंगे तो होगा, जो कि फ्रीलांस से भी हो सकती है, इंडस्ट्री से भी हो सकती है. जो लास्ट वाला पॉइंट है, आई थिंक दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ एरियाज जो मैं समझता हूँ AI विद एज कंप्यूटिंग एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी, इट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल. उसकी रीज़न ये है कि अभी भी AI इज ईजी टू लेट्स से लर्न मशीन लर्निंग, इट्स डिफिकल्ट टू अप्लाई एंड प्रूव. It's really 87% of data science projects they fail because of all this reasons. Secondly, जो भी AI आप देखते हैं ना, जो डेटा जो डिजिटल वर्ल्ड की है AI जिसमें डेटा अवेलेबल है, दैट्स वन थिंग. लेकिन बहुत सारी AI वो है जिसमें आपके पास डिवाइस अवेलेबल नहीं है. मेरे पास फॉर एग्जांपल ये iPhone 12 है, इसमें वो लाइडार आ गया है, आपके पास रास्पबेरी पाई की न्यू डिवाइसेस आ रही हैं. सो अब जो भी इस हार्डवेयर लेवल पे चला जाता है AI में, these people have still advantage. You can always win project, you can always win work, you can always make new patents. Cloud technology as well. हम पाकिस्तान में मैं देखता हूँ कि कोई बंदा ही नहीं मिलता क्लाउड का. यानी आपके पास क्लाइंट है, स्पार्क का कोई बंदा नहीं मिलता, AWS के सर्टिफाइड नहीं मिलते, स्टूडेंट्स भी नहीं मिलते. So these are the areas which I still believe they are kind of green fields for faculty and of course for students. एक मैं थोड़ी सी एग्जांपल ये भी दे सकता हूँ कि जब फैकल्टी काम करेंगे, जब आप काम करेंगे, रिसर्चर्स काम करेंगे लोकल सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ, तो ये यू कैन ऑफ कोर्स अचीव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. कुछ काम हमने स्टार्ट किया जिसमें हमने वहाँ पे जब ट्रेनिंग की, टेक्सल मैंने आपको सॉफ्टवेयर उसका बताया, तो उसके बाद फिर वहाँ पे हमने काफ़ी सारी एडवाइजरी भी की, और वहाँ पे जो लोग हैं वो जो ट्रेन लोग हैं हमारे, दे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ सेवरल स्टार्टअप, सेवरल प्रोजेक्ट्स. ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्पोर्ट्स एनालिटिक्स की, किसी US के इंक्यूबेटर के लिए, ड्राइवर एनालिटिक्स की, इनवीडिया के पार्टनर एक US हैं, और लाइडार RGB जो है डेंट डिटेक्शन वगैरह, डिफेक्ट एनालिसिस कार्स के ऊपर, एंड सो ऑन. ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में AI की सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो US के या फॉरेन लोगों को करके दे रहे हैं. And this is just achieved within some time, of course, with the help of faculty and academia. Software industry, I will just skip that. I think high level में सिर्फ एक बात कर सकता हूँ कि they just complain a lot about inefficiency and defensiveness of academia. इस पे डॉक्टर साहब ने भी पहले बात की, so I will just go ahead and I will just say कि software industry को they should establish innovation labs, और उनको भी चाहिए कि वो अपस्किल करने के ऊपर इन्वेस्ट करें. एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग इनसाइट होगी शायद आपके लिए, वो ये है अदर देन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, राइट? सो AI इज नॉट ओनली फॉर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. यूनिवर्सिटीज हैव टू वर्क विद ऑल द आस्पेक्ट, अदर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर एंड सो. बैक इन 2018 और 19 हमने थोड़ी सी एक स्टडी की, हमने देखा कि भाई क्या रीजंस हैं, और उसमें हमने एक चीज़ ये चेक करने की कोशिश की कि जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट बोर्ड्स हैं पाकिस्तान में, उनमें एकेडेमिया में तो PhD आ गए सारे, HEC ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और आ गए, लेकिन क्या जो हमारा कंज्यूमर है उसके पास भी हैं कि नहीं? तो ये आप ग्राफ उसका कंपैरिजन देख रहे हैं, जर्मनी वर्सेस पाकिस्तान. तो हमने जर्मनी के 30 जो फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज की जो 30 टॉप कंपनीज थी उनको लिया, और पाकिस्तान में हमने KSE की टॉप 30 ली. और वो जो आप देख रहे हैं राइट साइड पे जो है ना, वो जो फर्स्ट जस्ट टू थिंक अबाउट द ब्लू वन, तो ये सुपरवाइजरी बोर्ड जो हैं उनके, जर्मनी में 430 मेंबर्स थे, उनमें से 131 PhDs थे, ठीक है. पाकिस्तान के सुपरवाइजरी बोर्ड में 266 में सिर्फ 6 PhDs थे. सो यू सी कि जी जो रेशियो है हमारे इंडस्ट्री में इनोवेशन की एपिटाइट क्या होगी. सो दैट्स वन ऑफ द बिग इश्यूज आई सी विद द इंडस्ट्री, कि हमारी जितने भी लोग हैं वो सारे इंडक्ट हो रहे हैं एकेडेमिया में, उनमें से वो लोग उधर नहीं जा रहे इंडस्ट्री में. सो वो चिकन एग प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, वी विल बी टू सेपरेट थिंग.
मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जर्मनी की ऑफ कोर्स चांसलर, शी इज अ पीएचडी इन आई थिंक केमिस्ट्री है। डीएचएल के हेड डॉक्टर फ्रैंक एप्पल, ही इज अ पीएचडी इन बायोलॉजी, बायो के सब्जेक्ट में पीएचडी हैं। सो इट्स नॉट कि जी हमने पीएचडी कर लिया तो अब हमने सिर्फ टीचिंग ही करनी है। यू कैन बी एक्चुअली अ ग्रेट बिजनेसमैन, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर, राइट। सो आई अनफॉर्चुनेटली, और आप देखें 70% ऑफ जो R&D फंडिंग है जर्मनी की, दिस इज कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्री, नॉट फ्रॉम गवर्नमेंट। पाकिस्तान में तो भी शायद बहुत दूर है। सो दैट्स आई थिंक द वे फॉरवर्ड। इसमें एक एग्जांपल मैं आपको ये भी दे दूं कि मैनेजमेंट बोर्ड्स में ऑफ कोर्स आना चाहिए। इनोवेशन लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट नहीं आता अगर आप लोग इस तरह से काम नहीं करते। तो मैं एग्जांपल आपको दे दूं, मेरे सियालकोट यूनिवर्सिटी में मेरे एक दोस्त हैं सियालकोट में, और उन्होंने मुझे कहा कि हम ना AI का प्रोजेक्ट या डेटा साइंस का एमफिल यहाँ स्टार्ट करते हैं, PhD। तो और मैंने कहा भाई यहाँ पे कौन आएगा, व्हाट यू शुड डू इज प्रॉब्ली इज दैट यू शुड टॉक टू योर स्पोर्ट्स, इतना बड़ा स्पोर्ट्स का सिटी है। कितनी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि आडिडास जो है वो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ से करवाता है, और आडिडास जो है ना, ये जो भी गोल्ड टेक्नोलॉजी है, जो यहाँ पे चिप है, वो यहाँ पे जर्मनी में बनती है, ठीक है। और बाद में वो कहते हैं जी यहाँ पे आप जो है ना बस हमें फुटबॉल बना के दे दें। सो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, यू शुड टॉक टू देम एंड यू शुड आस्क देम कि जी आप अपनी लैब्स बनाएं, हम आपके साथ यूनिवर्सिटी, हम आपके साथ काम कर सकते हैं, एंड वी कैन डू थिंग्स फॉर दैट लाइक दैट। सिमिलरली फॉर एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग, हम खुद भी, मैं कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। फॉर एग्जांपल कैटल एनालिटिक्स के फार्म्स के ऊपर किस तरह से उनकी ग्रोथ ज़्यादा की जा सकती है। बट आई थिंक दिस इज आल्सो व्हाट इंडस्ट्री शुड इन्वेस्ट विद एकेडेमिया इन मे बी सिलेक्टेड फील्ड। सिमिलरली जो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज हैं, इसमें गवर्नमेंट या जो डिफेंस हैं, दे कैन बी द लार्जेस्ट स्पॉन्सर, दे कैन बी द लार्जेस्ट इंडस्ट्री फॉर एकेडेमिया। आई थिंक किसी हद तक ये ट्रू भी है अभी तक कि जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसा कि नस्ट के साथ है मेरा, उनको काफ़ी प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। बट द गवर्नमेंट शुड कंसिडर एकेडेमिया एज अ टॉप प्रोवाइडर कंपेयर टू समवन एल्स। एक फाइनल जो कह लें जो पार्ट है वो है एकेडमिक प्रोग्राम्स का, कि जी एकेडमिक प्रोग्राम्स किस तरह के होने चाहिए AI में और किस तरह के हैं। एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जर्मनी में जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये इस तरह के कंबाइंड प्रोग्राम है, तो ये जो आपको लिंक है, आप अगर इस लिंक पे भी जाएंगे तो ये डुअल स्टडी प्रोग्राम है, डबल स्टडीज प्रोग्राम है। इसमें बहुत टन्स ऑफ प्रोग्राम है जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं। तो वो यूनिवर्सिटी क्या करते हैं, इस तरह का प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं कि जिसमें आपने 3 मंथ्स कोई कोर्सेज पढ़ने होते हैं और 3 मंथ्स आपने इंडस्ट्री एफिलिएट्स के साथ काम करना होता है। तो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं वो कुछ कोर्सेज की एग्जांपल हैं, जैसे इन्फॉर्मेटिक्स है तो उसमें कोई 9 डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं और मुख्तलिफ कैंपसेस में। और राइट साइड पे फिर आप देख रहे हैं कि उसमें से किसी पर्टिकुलर कोर्स के कौन कौन से उनके इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, डोइचे बैंक है, SAP है, IBM में भी इसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो इस तरह के डुअल प्रोग्राम से आते हैं। तो वो 3 मंथ्स वो यूनिवर्सिटी ने प्रोग्राम ही ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि भाई आपने इस, आपका स्केड्यूल ये है और उसके बाद आप 3 मंथ्स फ्री हैं। They are selected as a scholarship from these universities, these companies, and then they of course do a great job. और वो जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो बेसिकली इसी तरह के स्टूडेंट्स ने बनाई हुई थी। एक एडवांटेज क्या होता है कि जब स्टूडेंट बैचलर करने तक ही इतना मैच्योर हो चुका होता है कि वो जब इंडस्ट्री में जाता है, दे ऑलरेडी नो, इसमें कोई स्ट्रिंग भी इनकी ज्यादा अटैच नहीं होती कि आप डोइचे बैंक है तो डोइचे बैंक में रहेंगे। वो उससे उतना काम ले लेते हैं उसकी स्टडी के दौरान ही कि उसका स्कॉलरशिप कवर हो जाता है। सो दैट्स समथिंग अनफॉर्चुनेटली आई बिलीव वी आर मिसिंग। सो मैंने जो चीज़ देखता हूँ कि वो एज इज ये है कि देयर आर सो मेनी प्रोग्राम ऑफ AI डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंस पीपल आर स्टार्टिंग इट, बट इफ यू डोंट कनेक्ट इट विद इंडस्ट्री they will produce half-cooked data scientists. So that one should really consider. मेरी फीलिंग ये है कि डेटा साइंस ऐसी चीज़ है जिसमें आप समटाइम जब आप पहला प्रोग्राम बनाते हैं, मशीन लर्निंग करते हैं, तो वो लोग ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। ये वो चीज़ है जो इंडस्ट्री भी कंप्लेन करती है कि यार वो एक, अभी डॉक्टर साहब ने कहा ना कि वो यूनिवर्सिटी में उन्होंने कुछ काम किया होता है, इधर वो जर्नल सही और नाम बड़ा बड़ा होता है, कहीं पे कोई मशीन लर्निंग का कोई एल्गोरिथम लगाया होता है, इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो कहते हैं जी हम तो बहुत बड़े चीते हैं, बट इट डज नॉट वर्क लाइक दैट, राइट। सो you need to make sure that we are really meeting the demand, right? In my opinion, it should be software development. At the end of the day, we are developing solutions, right? फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के जैसे आपने भी कहा कि दे शुड बी विद इंडस्ट्रीज, इट्स गुड कि आप अपने प्लेटफॉर्म से इसको प्रमोट कर रहे हैं। डज नॉट मेक सेंस टू बी एट यूनिवर्सिटी फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। Okay, so finally, what we are missing, I think what we are missing is an organization of advancement of applied research. मैंने वो जो बोर्ड में लिखा है इसकी एक पर्टिकुलर रीज़न है। ये इसलिए है कि ये जर्मनी में इंस्टीट्यूट्स हैं,
उनका एक नेम है Fraunhofer, मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा. They are just call themselves like that, right? We are also missing business development at universities. We have Oryx, but I don't know. I mean, if you have never worked in industry and then you are trying to sell to industry, how does that work? AI advisory है, जैसे मैं कोर्सेज वगैरह की बात कर रहा हूँ, तो आई फील देयर इज समथिंग मिसिंग. सिमिलरली मार्केटिंग का ये है कि पाकिस्तान में अभी एक एडवांटेज है, मैं अक्सर कहता हूँ एआई इंडस्ट्री को, कि हमारे साथ कुछ स्टीरियोटाइप अटैच नहीं है जैसे कुछ दूसरे कंट्रीज एशियन के साथ अटैच है कि भाई ये चीप लेबर है, बॉडी शॉप्स हैं. सो वी कैन ऑफ कोर्स, इफ वी मार्केट आवरसेल्फ वेल, वी मेक श्योर वी आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी ग्रेजुएट्स, क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, देयर इज अ ह्यूज ग्रीनफील्ड अपॉर्चुनिटी. ये जो मैंने अभी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल दी, जर्मनी में जैसे हैं Fraunhofer, और ये वो चीज़ है जिस पे शायद HEC को या गवर्नमेंट को कुछ काम करना चाहिए कि इस तरह का कोई बॉडी बना दी जाए, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स बना दिए जाएं जिनकी जॉब ये हो कि वो इंडस्ट्री का काम करें, और उसमें टिपिकली प्रोफेसर्स होते हैं, उसमें PhD होते हैं. मेरी खुद PhD एक Fraunhofer के साथ है. जर्मनी में देयर आर ओवर 70 इंस्टीट्यूट्स. 30% they are funded, but 70% they earn it. They earn from budgets for projects, and they have of course a lot of innovations like MP3. मेरे खुद प्रोफेसर हैं, वो उधर Fraunhofer में काम करते हैं. यहाँ पे भी बहुत से मैंने देखा जर्मनी से जो लोग आए होंगे, वो more or less they will be attached to that. So you get an exposure to clients, something more practical compared to an academic PhD. उसकी एग्जांपल आप राइट साइड पे देखें, जब IBM ने सिलेक्ट किया जर्मनी को, IBM का जो क्वांटम मशीन है, क्वांटम कंप्यूटर है, उसको जब वो यूएस के बाद जो पहली मशीन वो जो आउटसाइड बिल्ड अप कर रहे हैं, दैट इज इन जर्मनी, and the partner is Fraunhofer Institute, right? It's not another company, it's not another university, it's somewhere in between. So that's, I believe, what we are also missing as an institute. So that's all from my side. Thank you, and sorry for being a few minutes more, but I think I actually put together whatever. Thank you very much, Dr. Shahzad. मेरा एक question है before we proceed further. Generally people come from और बहुत faculty में बहुत काबिल लोग भी होते हैं, लेकिन वो आके जो यूनिवर्सिटी की रूटीन है उसमें इतने absorb हो जाते हैं कि then they lose that touch. How these people can make their जो application side है more active? Do you have any suggestion? Sure. मैं पहले नंबर पे मैं सर यही सजेस्ट करता हूँ, मैं मेरे जो भी कुछ दोस्त हैं कि भाई स्टे अवे फ्रॉम नॉन प्रोडक्टिव थिंग्स. जस्ट रिक्वेस्ट कि भाई प्लीज हमें उस तरह की चीजों में ना डालें. सम टाइम पीपल आर सक्सेसफुल, सम टाइम दे आर नॉट. ठीक है. और दूसरी चीज उनको ये करनी चाहिए कि दे नीड टू बी फॉरवर्ड लुकिंग मीन यू शुड गो फॉर योर ओन फ्रीलांसिंग, यू शुड गो फॉर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी जो है उसमें भी हम परसू नहीं करते. देखिए जो मैंने नीचे लिखा ना, जो बिजनेस डेवलपमेंट है, अगर आप जो भी चीज आप करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे मैं कहता हूँ रिसर्चर भी एक तरह से बिजनेस नहीं कह रहे, सेल ही कर रहे होते हैं हम. वी आर ऑल सेलिंग समथिंग, इवन आवर आर्गुमेंट्स, राइट, दैट दिस इज आवर वर्क इज बेस्ट, हियर इज द प्रूफ. तो जब अब आप अगर अपने आप को वाकई करना चाहते हैं, इफ यू रियली हैव दैट करंट, तो फिर आपको थोड़ा इसको परसू करना पड़ेगा. और वो परसू आप इंडस्ट्री से करें. आप कहें जी आई एम अवेलेबल, आई वांट टू लर्न, डोंट नीड टू बी डिफेंसिव. इंडस्ट्री सम टाइम डरती है PhD से, यार ये डिफेंसिव बड़े हो जाते हैं कि मतलब ना पर्सनैलिटी क्लैश आ जाता है. सो यू मे बी यू गो मोर एज अ लर्निंग एंड एज अ फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी, एंड देन आई गेस इट शुड टेक यू जस्ट फ्यू मंथ्स to get on going. Thank you. Actually, that is what I have discussed with Hashmat Malik, जो CEO है SPS के, कि हम इस प्लेटफॉर्म से फैकल्टी को ये अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेंगे टू कनेक्ट विद द इंडस्ट्री, बिकॉज SPS इज बेस्ड इन US ओवर मोर देन 40 years. तो इनकी काफ़ी कनेक्टिविटी है, और बहुत सारे एक्सपर्ट पाकिस्तानी हैं जिनसे मेरी मुलाकात होती है. दे आर एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग द पीपल, और वो लाइव प्रोजेक्ट्स भी देने के लिए तैयार हैं. ये हम आखिर में डिस्कशन करेंगे. हशमत, ओवर टू यू. जी डॉक्टर साहब, thank you so much for the introduction. I think it was an inspiration to see Cheema साहब, the way he explained, and जो चीज वो कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है. So you were one of the academics and mashallah you connected it very nicely.
So we are fortunate that Dr. Rashid has been facilitating, but we are extremely interested in making it happen. I think the mission is the same for all of us. And I know we are very short on time, so I'll turn it over to Hashim. Thank you so much, Dr. Sir. Thank you. Thank you, Ash. Before we have a discussion session, I'll quickly share my screen. दो चीज़ें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ. One is how you can join us. I receive a lot of interest from faculty, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया. They want to learn the practical skills, and that's what we are trying to achieve here. As you can go on to spsnet.com/spinlabs, जहाँ पे 4 technology tracks हैं. You can always join these 6 sessions to become aware if you have no idea कि इसमें मैं कौन सा track choose करूँ. In each of these tracks, we have those courses leading to a certification listed there. You can go and explore that. AI के अंदर there are different courses available. Automation के अंदर available हैं. Similarly, जिस तरह डॉक्टर जो डॉक्टर शहजाद ने जिस बात पर जोर दिया अपनी टॉक के दौरान के we need the solutioning or the solution aspects rather than कि आपको machine learning का code लिखना आ जाए. So these are all solution related learning paths. So this is something you may want to explore. Similarly, cloud, IoT और cyber security के अंदर भी opportunities available हैं. एक और चीज़ जो डॉक्टर साहब ने आपके साथ शेयर की वो आपको स्क्रीन शेयर पे दिखा रहे थे कि और जो डॉक्टर अर्शद अली ने भी मेंशन किया कि देयर आर बिट्स एंड पीसेस ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट. आपने उनको सीखना है कि मैं कैसे उनको यूज़ कर सकता हूँ. जैसे स्पीच टू टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट टू स्पीच हो गया. सो इफ़ यू कैन गो ऑन टू ये एंड एनीबॉडी ऑफ इन द ऑडियंस, आप लोग अभी जाके देख सकते हैं cloud.ibm.com पे. अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन कर सकते हैं. अगर नहीं बना हुआ तो क्रिएट एन अकाउंट. इट्स अ 2-3 स्टेप प्रोसेस. आपको ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन कोड आता है एंड either edu or without an edu account you are able to create a free IBM cloud account. Once you do that, आप अगर यहाँ पे log in करेंगे तो the reason this is important and I'm showing this to you is because जिस तरह डॉक्टर शहजाद ने जिक्र किया, we do not have cloud expertise in Pakistan really if we practically look at it. तो this is so simple. आप account बनाएं, आप login करें, we have the IBM Cloud dashboard available. This is a IBM Lite account. Obviously they give you certain things for free. जो डॉक्टर शहजाद ने जिक्र किया IBM Academic Initiative का, अगर आप उस route से अकाउंट बनाएंगे you get a lot of stuff free beyond IBM Cloud. उसमें IBM Security, क्वांटम कंप्यूटिंग, AI, डेटा साइंस, बहुत सारी चीज़ें फ्री मिलती हैं. स्पेसिफिकली टू क्लाउड, अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये देखना है एंड मेरा FIP अगर AI के ऊपर है एंड मैं एक रास्पबेरी पाई को यूज़ करके आई वाज टॉकिंग टू समबडी जस्ट फ्यू डेज अगो ऑन कॉल, वो बता रहे थे कि वो इस तरह प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं. तो अगर आपने लेट्स से स्पीच टू टेक्स्ट का बनाना है, एक आपने FIP बनाना है, तो यू गो हेयर, आप अकाउंट बनाए, कैटलॉग पे क्लिक करें, आप ये देख रहे हैं कैटेगरीज. No, these are all of the services that are available within cloud platform. ये चाहे IBM हो, Amazon हो, तमाम Azure हो गया, जितने providers हैं वो ऐसे ही आपको सर्विसेज दे देते हैं. So you do not need to अलग अलग आप बिट्स एंड पीसेस करें. क्लाउड के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. अगर मैं आपको AI की दिखाऊं और मैं इस पर क्लिक करूं, लाइट अकाउंट जो कि ये मैंने बनाया हुआ है, तो ये आपको दिखा देगा कि ये सारी सर्विसेज हैं जो मेरे पास फ्रीली अवेलेबल हैं, जो डॉक्टर चीमा ने अपने टॉक के दौरान आपको शेयर किया. फॉर एग्जांपल, अगर मैं टोन एनालिसिस करना चाहता हूँ, ये है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि हाउ कैन यू गेट इट रनिंग. तो दिस इज अ शॉर्ट डेमो. आप टोन एनालाइजर पे क्लिक करें. इट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई द टोन ऑफ अ सर्टेन कन्वर्सेशन के इमोशनली कैसी थी, सोशली कैसी थी, was the person sad, was the person socially open or not. एंड यहाँ पे जाके मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा और ये सर्विस डिप्लॉय हो जाएगी. This is simple as that. Now, you as academia, in fact, as faculty who are student to support in FIPs, so this is such an amazing tool कि आप इसको use करके अपने बच्चों के लिए जिन्होंने कल को professionals बनना है, आप उनको real life FIPs पे you can help them started on these real life FIPs. और यहाँ पे अब ये पूरे documentation भी मौजूद है कि इसको कैसे use करना है. If you go to manage, तो यहाँ से आपको ये ले जाएगा product के UI पे. Go to product UI, so you have the product IBM Watson का dashboard आ जाता है. So I just wanted to give you a quick brief, a quick demo के जो डॉक्टर शहजाद ने आपको दिखाया. आपने अगर करना हो तो how easy it is. With this we can go back to Microsoft Teams and we can have a quick round of introductions. I'll start with the new face. अगर नादिया
नहीं अवेलेबल है तो डॉक्टर मुफस्सरा आप अपना तारुफ करवाएंगी? अपनी यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी से हैं और व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेंडिंग दिस सेशन? अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ पा रही? Are you here? Hello? We can hear you. We can hear Oh. you, please. Thank you. I'm Dr. Mufassra Naz. मेरा स्टार्ट यहीं से था, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। मैंने बायोइन्फॉर्मेटिक्स में PhD की है जर्मनी से, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन से। और डॉक्टर शहजाद चीमा साहब मेरे लिए भी इंस्पायरेशन है। ये मेरे पहले कोलीग थे जिन्होंने मुझे बायोइन्फॉर्मेटिक्स से इंट्रोड्यूस करवाया। तो PhD की, अच्छा काम था, फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट में काम किया, पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन के साथ एफिलिएटेड थी। यहाँ आने के बाद वही वाला इशू जो यहाँ पे सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ आके आप बहुत स्टक हो जाते हैं अपनी रोज़ की रूटीन में। लेक्चर्स ना सिर्फ कि आप अपने ड्यू लेक्चर्स देते हैं, फोर्सफुली आपको एडिशनल लेक्चर्स भी दे दिए जाते हैं, फिर कम से कम कोई 10 किस्म की कमेटीज़ का मेंबर बना दिया जाता है, तो आप बहुत कट ऑफ हो जाते हैं रिसर्च के साथ। तो आजकल मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हूँ अपने आप को कि नहीं, मुझे वापस अपनी रिसर्च की तरफ जाना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इंटरेस्टेड हूँ, कुछ नया लर्न करने के लिए। रिसर्च प्लेटफॉर्म भी नहीं अभी यहाँ पे कोई इस तरह से प्रोवाइडेड नहीं है। अगर मैं औरिक के पास जाती हूँ, उनके साथ मीटिंग की, तो आपको बहुत सारा डाटा भी अवेलेबल नहीं है। किसी हॉस्पिटल के साथ, मतलब जर्मनी में तो हम हॉस्पिटल्स के साथ रिसर्च कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल आपके साथ एग्रीमेंट के लिए तैयार नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार नहीं है रिसर्च वर्क के लिए। मैं गई 2-3 हॉस्पिटल्स में, उन्होंने कहा हम आपको सपोर्ट ही नहीं करते कि आप रिसर्च वर्क करें, हम डॉक्टर्स हैं, हम खुद कर सकते हैं, हमें बायोइन्फॉर्मेटिशियंस की ज़रूरत नहीं है। तो बस इस तरह से मैं खुद भी इनिशिएटिव लेना चाहती हूँ, कुछ और आगे लर्न करूँ और कुछ और आगे बायोडाटा पे काम कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली हम नस्ट में यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के हम ये जो शौकत खानम है, इनके साथ काफ़ी हमें बाय चांस कनेक्टिविटी मिल गई थी, हु वर इंटरेस्टेड इन रिसर्च, ऐसे डॉक्टर्स थे। तो वो हमें ये कोशिश लगातार करती रहनी चाहिए। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट द एफर्ट्स व्हिच यू आर मेकिंग। ये स्पिन लैब के प्लेटफॉर्म से भी देयर विल बी अपॉर्चुनिटी। सो मैं हाशिम को कहूँगा कि ही विल कनेक्ट विद यू to see how we can work together. Maybe we have some projects in your area of interest. So अगर आफ्ताब अवेलेबल नहीं हो तो can we have तौहीद? माइक ऑन कर लें आप। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौहीद है। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग थी ये आपकी प्रेजेंटेशन AI में। तो मैं बेसिकली रिटायरमेंट कह लें या सबैटिकल कह लें, तो मैं आई एम जस्ट इंटरेस्टेड क्या कुछ हो रहा है आजकल इंडस्ट्री में। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। And if there is anything you feel we can work together, we will be very happy to discuss separately. मोहम्मद आजम, आप अपना इंट्रोडक्शन करवा देंगे प्लीज? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आज़म है, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम में, और मैं इनके मलेशिया कैंपस में हूँ। कंप्यूटर साइंस से मेरा ताल्लुक़ है। मेरी डोमेन बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इंटीग्रेशन। तो ये मेरी डोमेन है, और मैंने अभी ईमेल देखी तो मैंने कहा मैं ज्वाइन करके देखता हूँ, लेकिन तब तक इनकी प्रेजेंटेशन ख़त्म हो चुकी थी। चलें नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। एंड इफ देयर इज एनी अपॉर्चुनिटी यू फील we can partner and join, तो उसमें we will be more than happy to see that. जी बिल्कुल।
मेरा काम IoT में है, तो उसमें स्मार्ट सिटीज़ और स्मार्ट हेल्थ केयर जैसी चीज़ें आती हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ताल्लुक है। तो यकीनन इसमें ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी जो कि कोलैबोरेशन जिसमें हो सकती है। श्योर, एक्चुअली IoT का हमारा एक सेपरेट सिग होता है। सो इफ यू लुक एट हमारी वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पिछले जो सिग है उनकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, सो यू कैन गो थ्रू दैट, यू विल बी एबल टू फाइंड इंटरेस्टिंग थिंग्स ओवर देयर। सही, ठीक है। एट Xinex, अगर आप अवेलेबल हो तो माइक ऑन कर लीजिए, अदरवाइज उस्मान अवैस। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एक टॉक में पार्टिसिपेट भी कर चुका हूँ, शायद डॉक्टर शेख को हाशिम को याद होगा शायद। जी जी। डॉक्टर चीमा जो है ही हैज बीन बड़े पुराने दोस्त हैं। जर्मनी में इन्होंने मुझे रिसीव किया था जब मैं जर्मनी गया था, तो मैंने जब देखा इनका नाम तो मैंने कहा इसमें तो पार्टिसिपेट करना लाजमी है। बिल्कुल। तो आप क्या करते हो अभी? मैं जी फास्ट लाहौर में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और मैंने AWS के क्लाउड एम्बेसडर प्रोग्राम को और क्लाउड इनिशिएटिव को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था, यही SPS के। अच्छा, हाँ बिल्कुल आई रिमेम्बर। सही। डॉक्टर साहब मैं ऐड कर दूं, उस्मान बड़े हम्बल तरीके से बात कर रहे हैं, ही इज रियली एक्सपर्ट ऑफ AWS। बल्कि पिछले दिनों मैंने जर्मनी से इनको अप्रोच किया था कि यार कोई काम इस तरह का है, ही वाज ऑफ कोर्स एंगेज, बट ही इज रियली एन एक्सपर्ट ऑफ AWS व्हिच इज रियली ग्रेट। माशाल्लाह, आई टेल यू कि मैं तो इतने लेवल पे सब लोगों को देखता रहा हूँ और मैं हमेशा बड़ा इंस्पायर भी होता हूँ और इम्प्रेस भी होता हूँ लोगों का जो पोटेंशियल है, लेकिन सम और दी अदर हमारा सिस्टम जो है उसको जकड़ लेता है। और मैंने नस्ट में फिर यही किया था कि आई बिकेम काइंड ऑफ अ शील्ड इन बिटवीन द सिस्टम एंड द पीपल। और मैं जितनी भी ये फजूल किस्म की ड्यूटीज़ की आपने बात की, इससे मैं उनको अवॉइड करके रखता था, और जो लोग इंटरेस्टेड होते थे एडमिन ड्यूटीज़ में ज़्यादा उनको एंगेज कर देता था, और जो रिसर्च में इंटरेस्टेड होते थे उनको सेपरेट कर देता था। सो दैट इज़ द वे टू गो। तो इंशाल्लाह इसको हम लेके चलेंगे। नाउ वी हैव हम अपने टाइम से भी तकरीबन थोड़ा ऊपर हो गए हैं, सो लेट्स क्लोज दिस सेशन। अगर कोई आखिरी कमेंट चीमा साहब आपकी तरफ से हैं तो यू आर वेलकम, आफ्टर दैट वी विल क्लोज दिस सेशन। Yeah, thank you very much again for inviting me. Really nice to see. और हाशिम साहब से बात करके बड़ा ज़बरदस्त लगा, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और इसी तरह से डॉक्टर साहब अगर कभी IoT पे वो कुछ प्रोजेक्ट की डिटेल होगी तो आई वुड बी रियली हैप्पी। सिमिलरली फॉर द ऑडियंस, फील फ्री टू कनेक्ट मी। दिस इज व्हाट आई लव टू डू। या थैंक यू। हाशिम आप? जी, we can now close this session. Just जो next session होगा AI का, that would be 4 weeks from now. If any one of you जो कि पिछले sessions की recording सुनना चाहता है, they are available on the website. Next week हमारा session होगा cloud technologies के ऊपर. So if you or any of your colleagues are interested, you are welcome to join. Thank you very much जी, अल्लाह हाफिज। Thank you. Allah Hafiz.